یہ جتنے جانباز شیر ہیں وہ سب پیچھے بیٹھے ہیں اور بچوں کو آگے کر دیا، جو کہ تمہاری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمیشہ آپ سربلند رہے ہیں، ہر محاذ پر اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، لیکن حقیقت ہے بہت اصلاح کی ضرورت ہے اس معاشرے کو۔ تقریر ہو، واعظ ہو، بیان ہو، مسجد ہو، آج نوجوان طبقہ جو اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ نوجوان طبقہ، بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی آپ کو پیچھے دیکھ کر، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کب تک پیچھے رہو گے؟ اس دیش کو آزاد ہوئے 70 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا، 950 سال تک تم غالب رہے، تمہارے ماتحت دنیا کی دیگر قومیں رہیں، تمہارے ماتحت۔ غور سے سننا، یہ تقریر نہیں ایک تحریک ہے۔ آپ نے جو اصلاح معاشرہ کمیٹی رکھی ہے 10-5 منٹ سن لیجئے، آپ کے ماتحت ساری قومیں رہی ہیں، اقوام عالم آپ کے ماتحت رہا، جتنی قومیں ہیں کم سے کم 1000 سال تک آپ حاکم تھے، 1000 سال تک ساری قومیں آپ کے زیر اثر رہیں، آپ کے ماتحت رہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن بچا کے رکھا، اپنا مذہب بچا کے رکھا، اور آج 70 سال تم ان کے زیر اثر ہو، 70 سال ہوئے ہیں تم ان کے زیر اثر ہوئے، لیکن مسلمان آج نہ ہماری زبان بچ پائی، نہ ہم نے اپنا کلچر بچا پایا، نہ اپنی تہذیب بچا پائی، نہ اپنا کردار بچا پایا، ہم کچھ بھی نہیں بچا پائے۔ اقبال کہتے ہیں گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ بس وجہ صرف یہی ہے، آج ہم ہر محاذ پر پیچھے ہیں۔ بہرحال جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، آپ سنو اور ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی آپ کوشش کرو۔ گالیاں دیتے تھے پتھر مارتے تھے اس کو لوگ، گالیاں دیتے تھے پتھر مارتے تھے اس کو لوگ، وہ عجب انسان تھا سب کو دعا دیتا رہا۔ گالیاں دیتے تھے پتھر مارتے تھے اس کو لوگ، وہ عجب انسان تھا سب کو دعا دیتا رہا، اور غلامی کی زنجیروں کو پیروں سے کچل ڈالی ہے، غلامی کی زنجیروں کو پیروں سے کچل ڈالی ہے، دنیا کی محمد نے تقدیر بدل ڈالی ہے، اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے،
सलाम है खाक के टूटे हुए दिल छोड़ने वाले, कोई आंधी बुझा सकती नहीं तेरे चिरागों को। या रसूल अल्लाह, अरे कोई आंधी बुझा सकती नहीं तेरे चिरागों को। फलक को याद है अब तक तेरा तर्ज़े करीमाना, फलक को याद है अब तक तेरा तर्ज़े करीमाना। आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमते आलम बनकर। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं राह मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। और या रसूल अल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जान और माल औलाद से प्यारा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं। मोहतरम हजरात, आज आपने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई है, यौम विलादत पैगम्बर। ये इस्लाह मुआशरा है क्या चीज़? हजरात, मक्का की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मेरे रसूल का सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं है कि पैगम्बर ने चांद को 2 टुकड़े कर दिया। मेरे रसूल का ये सबसे बड़ा मौजज़ा नहीं है कि नबी ने कंकरियों से कलमा पढ़ा लिया। मेरे नबी का ये सबसे बड़ा मौजज़ा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। हजरात, सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि मक्का की सरजमीन पर लहू लहान हो जाना, जख्मों से चूर चूर हो जाना, नालैन मुकद्दस खून से भर गया। और हजरत जिब्रील पहुंचते हैं, या रसूल अल्लाह इशारा कीजिए, इस आबादी को ज़ेरो सबर कर देंगे, इस आबादी को तहस नहस कर देंगे। रहमत आलम दस्ते करम उठा कर कहते हैं, ये पाक परवरदिगार, इन्होंने मजरूह किया, इस कौम ने घायल किया है, इस पर रहम करम के फूल बरसा देना, जख्म खाकर दुश्मन को दुआ देना, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। पत्थर खाके दुश्मन को दुआ देना, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। फतेह मक्का के दिन ये आपके लिए है। आज हाल हमारा क्या है? मुसलमान नमाज तो जरूर पढ़ रहा है, रोजे तो जरूर रख रहा है, नवाफिल तो जरूर रख रहा है। कहा ना हजरत, वाकई में 700 मकाम पर कुरान में नमाज का जिक्र है ये हजरत, लेकिन हमारा किरदार, हमारे मामलात, हमारे अमल का साथ नहीं दे रहा है। आज मुसलमान नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन आज हाल इसके हसद का ये है कि एक भाई दूसरे भाई की तरक्की नहीं देख सकता, एक भाई दूसरे भाई की अजमत को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, एक भाई दूसरे भाई के उरूज को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। हसद की आग में आज हम चल रहे हैं। इख्तलाफात हमारे यहाँ, इंतशार हमारे यहाँ, भाई भाई का बाकी हमारे यहाँ, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हमारे यहाँ। ये हजरात, आपने कैसे कलमा पढ़ा है? इकबाल कहते हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। निगाह मुसलमान नहीं है, किरदार मुसलमान नहीं है, जुबान मुसलमान नहीं है। ये हजरात, आओ जरा वाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम जब मक्का फतह करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करते हैं, आप गालिब आ गए। जब आप दुश्मन पर गालिब आ गए तो हाल क्या है मुस्तफ़ा का जरा देखो। कातिल सामने है, जालिम सामने है, बदमाश सामने है, सफाक सामने है। रसूलुल्लाह को जिसने गालियां दिया था आज वो भी सामने है। बिलाल को जिसने तड़पाया था आज वो भी सामने है। हजरत अमीर हमजा का जिसने कलेजा चबाया था आज वो भी सामने है। हजरत अम्मार बिन यासिर की जिसने खाल खींची थी आज वो भी सामने है। रसूलुल्लाह को जिसने रुलाया था, थप्पड़ मारे थे पैगंबर को,
آج وہ بھی سامنے ہے. حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ کا جسم مبارک جس نے کاٹا تھا آج وہ بھی سامنے ہے. قاتل سامنے, سفاک سامنے, بدماش سامنے, ظالم سامنے. ان حالات میں اپنے دشمن کو معاف کر دینا یہ آسان کام ہے؟ یہ حضرات آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے بھائی کے وجود کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. مسلمان کا حال یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کا احترام نہیں کر رہا ہے, لیکن واہ رسول اکرم آپ کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا خالد ابن ولید یہ تو ان کا کردار تھا, ان کا عمل تھا, جنہوں نے مارا تھا, جنہوں نے رلایا تھا. آج ہم بدلہ نہیں لیں گے. خالد ابن ولید جاؤ, ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. اے خالد ابن ولید, کل انہوں نے پتھر برسائے تھے, آج ان پر رحم و کرم کے پھول برسا رہا ہو. یہ رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے. زخم کھا کے دعا دینا, یہی دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپ اٹھی. اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی طہا وہی فرقہ وہی قرآن, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, دلدار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ حضرات آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے اس جلسے میں, یہ جلسہ کیا ہے, جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اس ہوش ربا دور میں, اتنی مہنگائی کے دور میں آپ نے جلسے کا انتظام کیا, ضیافت کا انتظام کیا, علماء کے قیام و تام کا انتظام کیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے یہاں سے کچھ لے کے تو جائیں آپ, اصلاح معاشرہ ہو. آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, لیکن آج ہم آپس کے قتل و قتال میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا دست و گریباں پکڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی چکلش بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک قوم مسلم کہاں تو کھو گیا ہے. اجمل سلطان پوری فرماتے ہیں ہوش کو ہوش کر کھولا کے کہاں سو گیا, دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. ہوش کر کھولا کے کہاں سو گیا, دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. اور تو نے دریا میں گھوڑے کو دوڑا دیا, تو نے خشکی پہ کشتی کو تیرا دیا, تو نے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا دیا. دین تو دین دنیا کا بھیتر ملا, جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں, تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں. یہ حضرات آپ متحد ہو جاؤ, تعلیم پر زور تو زور, اور اسلام نے سب سے پہلے اخوت کا درس دیا ہے. آؤ ذرا دیکھو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ذرا ایک سبق پلٹیے, ایک ورق پلٹیے. واہ رحمت عالم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں علامہ عبدالعلی میڈھٹی رحمت اللہ علیہ. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن پہنچے, وہاں کا پروفیسر تھا ولیم. اس نے کہا مولانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر, ان کی حیات پر کوئی کتاب مجھے دیجئے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے کتاب دیا سیرت مصطفیٰ پر. ولیم نے جب کتاب پڑھی تو لرز گیا, کانپ گیا. کہا مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا ہے. کہا وہ کون سا واقعہ ہے؟ کہا قوم مسلم نے وہ فارمولہ اپنایا ہے جس فارمولے کو اپنا کر ساری دنیا پر غالب ہو سکتے ہیں, لیکن افسوس آج ہم نے وہ دامن چھوڑ دیا ہے. کہا بتاؤ وہ کون سا سبق ہے؟ تو ولیم نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تبلیغ کے سلسلے میں پہنچتے ہیں. جب تبلیغ کے سلسلے میں ایک گاؤں میں پہنچے تو حاتم طائی کی بیٹی وہ صحابہ کرام کے زیر اثر آ گئی. صحابہ کرام اسے لے کے مدینہ پہنچے. جب صحابہ کرام حاتم طائی کی بیٹی کو لے کے آنے لگے تو حاتم
हातिम ताई की बेटी ने पूछा था, कहाँ लेके चल रहे हो? कहा हम अपने नबी के दरबार में लेके चल रहे हैं। कहा क्या नाम है तुम्हारे नबी का? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है। हातिम ताई की बेटी ने कहा नाम तो मैंने सुना है, चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा सवाल करूंगी कि तुम्हारे नबी वो जवाब नहीं दे पाएंगे। हातिम ताई अरबपति बाप की बेटी ने कहा मैं तुम्हारे नबी से ऐसा सवाल करूंगी कि आपके नबी जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर बारगाह रिसालत में सुबह के वक्त पेश हुई है। 26 साल की उम्र है, आलम शबाब की बहारों से वो खेल रही है। जिस वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश की गई है, ये हजरात आप अपनी तारीख देखें, उसकी जुल्फें खुली हुई थी, उसके बाल कुशादा थे, उसकी जुल्फें कुशादा थी, खुली हुई थी उसकी जुल्फें। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारी है। उतारने के बाद कहा सलमान इधर आओ और ये चादर लो, इस बेटी के सर पे डाल दो। जैसे कहा इस बेटी के सर पे डाल दो तो सलमान फारसी अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह ये मुशरिका है, ये नजीस है और ये चादर नबूवत है, चादर रिसालत है, ये पैगंबर, इस पर कुरान की आयतें नाजिल होती है, इस पर वही के अल्फाज नाजिल होते हैं। ये पैगंबर मैं अपनी चादर इस बेटी के सर पे रख दे रहा हूँ। जैसे सलमान फारसी ने कहा चश्माने नबूवत में आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखें अश्कबार हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया। रहमत आलम तड़प कर कहते हैं सलमान ये तुमने क्या कह दिया? ये सलमान ऐसा ना बोलो, सलमान बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी हो, चाहे दोस्त की बेटी हो, चाहे आला की बेटी हो, चाहे अदना की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। चाहे समाज के किसी भी तबके की बेटी हो, चाहे हिंदू भाई की बेटी हो, पादरी की बेटी हो, जालिम की बेटी हो, मजलूम की बेटी हो, आला की बेटी हो, ये सलमान बेटी बेटी होती है। ये सलमान निगाहे मुस्तफा में जो मकाम मेरी बेटी फातिमा का है, वही मकाम इस बेटी का है। ये कहकर पैगंबर ने अपनी चादर करम उतारी है और उस बेटी के सर पे डाल दिया है। जैसे सर पे डाला है अल्फाज मुंतशिर हो गए, लहजे में खार था, शबनम टपकने लगे, आंसुओं में गजब के आंसू थे। यहाँ मोतियों की झड़ी लग जाती है। अखलाक का मुजाहिरा जरा देखो, जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त, मारा है तो अखलाक की तलवार से मारा। बेटी ने कहा ये पैगंबर क्या आपका यही दीन है, क्या आपका यही इस्लाम है? हाँ बेटी यही मेरा दीन है, यही मेरा मजहब है। समाज की कोई भी बेटी हो अपनी बेटी की तरह उस पर निगाह पड़नी चाहिए, हर बेटी को सम्मान देना चाहिए। ए बेटी यही मेरा मजहब है। कहा मोहम्मद अरबी जब आपका यही मजहब है, देर न करो पहले मुझे भी कलमा पढ़ा लो, दामने करम में शामिल कर लो। अल्लाह हुसैन हाली कहते हैं वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की परलाने वाला, खता कार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो नुस्खे कीमिया कौन है? वो नुस्खे कीमिया कुरान है, कुरान। वो नुस्खे कीमिया कुरान है जिसको पढ़ने के बाद सहाबा ने दरियाए दजला को खाक में मिला दिया। आज यही कुरान को तुमने बालाए ताक रख दिया। अब मुझे आप बताओ, आज दुनिया को अपने जलसे से बताओगे कि नहीं बताओगे? इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है। ये कैसे बताओगे? जुबान से कि अपने अमल से? अपने अमल से बताओगे, अपने किरदार से बताओ। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है। भूखे को खाना खिलाना ये इस्लाम है।
पड़ोसी की मदद करना ये इस्लाम है। अब पड़ोस में चाहे कोई भी भाई हो, हिंदू मुसलमान जो भी हो, उसकी मदद करना आपका काम है। इस्लाम नहीं फैला तलवार की ताकत से, इस्लाम तो फैला है अखलाक की ताकत से। किरदारे मोहम्मद का क्यों करना असर होता, मिट्टी भी महकती है गुलजार के साए में। रसूलुल्लाह ने बेटी के सर पे चादर रखी है, लेकिन आप जरा अपना मुआशरा देखो, अपना हाल जरा देखो, आज हमारा हाल क्या है। आज हमने बेटी के मर्तबे को घटा के जमीन दोज कर दिया है। यही हाल तो अहले मक्का का था, वो बेटियों को काटते थे, पालते थे ताकि शादियां न करना पड़े। अगर शादी होगी तो दामाद घर आएगा। आज यही हाल हमारा है कि नहीं है? दिल पे हाथ रखे आप बताओ। आज जहेज के लालची लोगों ने जहेज के मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया है कि आज बेटियां बोझ महसूस हो रही हैं। दिल पे हाथ रख के कहो, अगर इतनी पाबंदियां ना होती तो आज बेटियों का कत्ले आम होता। कल जमाना साइंस से नावाकिफ था, बेटियां पैदा होती थी तो काटी जाती थी, आज रहमे मादर ही में काट दी जाती। लेकिन ए हजरात, कब आप अपने मुआशरे को बदलोगे? इस्लाह मुआशरा कमेटी है। इस्लाह का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने मस्जिदों को भर दिया, स्टेज भर दिया। इस्लाह का मतलब यह है, आज समाज का सबसे सुलगता हुआ मसला कौन सा है? कभी आपने गौर किया आज समाज का सबसे सुलगता हुआ मसला कौन सा है? आज समाज का सबसे हसास और सबसे टफ और सुलगता हुआ मसला जहेज है। जहेज जहेज। इस्लाम ने शादी को आसान किया है। मक्के की सरजमीन पर रसूलुल्लाह ने पत्थर खाकर कहा, लोगों बेटियों को मत दफन करो, लोगों बेटियों को मत गाड़ो, लोगों बेटियों को मत सताओ। ये लोगों, यही बेटियां रहमत हैं। आज हमारा हाल क्या है? 10-15 लाख के नीचे शादी नहीं हो पा रही है मौशकी साहब। आज हाल यही है ना? ए राइन हजरात, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इस्लाम में मिसला है मुआशरा तुमने कमेटी रखी, लेकिन कब इस पर गौर करोगे? आज कैंसर की तरह पनप रहा है, आज कैंसर की तरह पनप रहा है। आज आप देखें, हमारी बेटियां मुर्तद्दा हो रही है, हमारी बेटियां आज राह से बेरारवी की शिकार क्यों हो रही है? उसके जिम्मेदार आप हो। आज कोई भी शादी 10-20 लाख में नहीं हो रही है। वजह क्या है? अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है ना, 20 लाख में अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। कभी सोचा हमने कि हमारा सगा भाई है, उसकी हालत, माली हालत बहुत कमजोर है, आखिर उसके पास 4 बेटियां, उसका हाल क्या होगा? कभी हमने सोचा इस पर? अगर ये सोच नहीं है तो एक नहीं 50 उम्रा कर लीजिए, वही उम्रा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा लपेट कर। कान खोल कर सुन लो, आज जहेज का हाल क्या है? आज जहेज का हाल ये है, जमीन बिक रही है। आज हाल ये है, सूदी पैसे के नीचे हमारी कौम दब रही है। गरीब बाप क्या करे बेचारा अपनी बेटी के घर बसाने के लिए? या तो जमीन बेचे या तो कर्ज ले। और समाज के ठेकेदार जो फिरौन की तरह हाजिर होते हैं। हाँ, बारात में जब जाते हैं तो हमारा रवैया फिरौन की तरह हो जाता है। बारात में जब हम जाते, बताइए 250, 300, 500 बाराती, आखिर उस गरीब बाप को क्यों सता रहे हो? वो भी तुम्हारा भाई है, वो भी तुम्हारा कबीला है, वो भी तुम्हारा कुंबा है। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए वो कर्ज लेने पे मजबूर हो गया है। होना तो ये चाहिए था 5 आदमी जाते, शरीयत के मुताबिक मस्जिद में निकाह करते, शरबत पीकर चले आते। ये 500, 200, 250, 300 जो बाराती जालिम लेकर जाता है, यही भीड़ अपने घर पे करो वलीमे की शक्ल में। क्यों गरीब बाप को सता रहे हो? क्यों गरीब बाप को रुला रहे हो? यही वजह है मुसलमान की नमाज, रोजा, उमरा, हज, अमल, ज़िक्र, अस्कार, तफक्कुर, तहकीक, अल्लाह ने सबकी रूहानियत सल्ब कर लिया है। इसलिए कि जब तक दर्द नहीं होगा कौम
से जब तक तुमको मिलने वाला नहीं है। सच कहा है किसी कहने वाले ने, खुदा के बंदे तो है हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तुम्हें प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीयतुर राइन कमेटी के जितने लोग बैठे हैं, अहद करो, अहद करो, हम अपनी समाज से जहेज को सबसे पहले मिटाएंगे। जौनपुर में कमेटी तैयार हो गई, उन्होंने कहा हम इज्तिमाई शादी करेंगे। इज्तिमाई शादी, जो शादी में 50 उन्होंने जोड़ा, 1,55,00,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ 15 शादियों में खर्च हुआ। 1,55,00,000 अय्याशी में, जो काम 10 रुपए में होना था 1,55,00,000। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम सिर्फ 10,000 में बेटियों की शादी करेंगे। अपनी बिरादरी पे, राइन बिरादरी है, कोई जगह सेट कर लो, किसी जगह का इंतखाब कर लो, बेटियां और सारी तारीखें उसी पर रखो, और बेटियों को वहां लाओ, निकाह हो, अक़्द खानी हो, शरीयत के मुताबिक बेटी अपने घर चली जाए, न जमीन बिकेगी, न सूदे पैसे लोगे। आज देख रहे हो कारोबार कितना खत्म हो चुका है। आज तासुब का इतना दौर हो चुका है, लफ्ज़ मुस्लिम के नाम से इतनी नफरत हो चुकी है कि कोई तुमसे कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। माली हालत, मईशत जब कमजोर हो जाएगी, क्या करोगे? वो कौम भिखारी हो जाती है जो कौम माल पे नहीं ध्यान देती है। पैसा बचाओ, रुपया बचाओ, यही पैसा तालीम पे खर्च करो, तिजारत पे खर्च करो, बिजनेस पे खर्च करो, इल्म पे खर्च करो। कुरान कहता है इन्नल मुबस्सरीना कालू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्च करने वाला शैतानों का भाई। आज बेपर्दगी का हाल क्या है? बहनें बेटियां भी वलीमे में जा रही हैं, ये भी बेहयाई का मुजाहरा। कहां, किस एंगल से मुसलमान लग रहे हैं? जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये हाल है तुम्हारा। 50 लाख में शादी कर रहे हो, बहन बेटियां भी जा रही हैं बारात में, बहन बेटियां भी जा रही हैं दावत में। जो बेटियां पर्दे में थी, जो बेटियां हया की चादर ओढ़े हुए थी, आज हमने उन बेटियों को रोड पे ला दिया है। आओ जरा देखो इस्लाम दर्द का कैसे मजहब है। कौन नहीं जानता हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को? वाह रे अब्दुल्ला मुबारक, इन्हीं के शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा। वाह रे अब्दुल्ला इब्न मुबारक, जबरदस्त मुहद्दिस है। हज करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, बचाओ पैसा। ये जमाते राई, खुदा की कसम अगर तुमने इस बुराई को अपनी समाज से निकाल दिया तो एक नहीं 10 उम्रा करने का अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। उठो, आप ही इंकलाब बर्पा कर सकते हो, आप ही क्रांति बर्पा कर सकते हो। मुट्ठी भर इजराइल ने पूरी दुनिया का नक्शा बिगाड़ दिया। पढ़ रहे हो ना अखबार में, किसी मोबाइल देखते हो आप, है कहीं इत्तेहाद, है कहीं आप एक। आज पैसा होगा तो साइंस होगा, पैसा होगा तालीम होगी, पैसा होगा डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IAS PCS बनोगे। ये ड्राइवर और भंगार तुमने पैदा किए हैं, ये कब तक मुकाबला करेंगे? 70 साल हो गए इस खुफिया तंजीम को मेहनत करते हुए। ऐसा जमीनी स्तर पे इन्होंने मेहनत किया, आज सुप्रीम कोर्ट इनकी जेब में, हाई कोर्ट इनकी जेब में। कौन सा ऐसा महकमा है जो इनकी जेब में नहीं है? वजह सिर्फ यही है, मेहनत किया है 70 साल और रेजी किया है 70 साल, और तुमने 70 साल से अय्याशी किया है, पैसा लुटाया है शादियों में, बारात में, डीजे में, अय्याशी में। सिर्फ पैसा तुमने लुटाया है। 50 लाख की मस्जिद बनाई है, 50 करोड़ का घर बनाया है, कॉलेज नहीं बनाया है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, दरसगाह तुमने नहीं बनाया है कि हमारे बच्चे जहां पढ़ते तो हमारे बच्चों का मजहब बचता, हमारी बेटियां जहां के पढ़ती तो उन बेटियों की आबरू बचती। है कोई स्कूल बताओ, है कोई कॉलेज जहां हमारी बेटियों की आबरू बचे, जहां डॉक्टर इंजीनियर बने? आज का पेपर आपने पढ़ा है, एक बहन सना है हैदराबाद की, कितनी मेहनत किया है उसने, टॉप आई है, डॉक्टर बनी है, लंदन यूनिवर्सिटी से होके आई,
पैसा खर्च किया ना उसके गरीब बाप ने, जमीन बेच दिया, मकान बेच दिया, आपका क्या हाल है? दर्द पैदा करो, हालात बदल चुके हैं, कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई तुम्हारी हिमायत में खड़ा होने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल जिसको तुमने नाराज कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, आखिरी बात, बहुत बड़े ताबई हैं, दर्द देखो, दर्द रखो, मोहब्बत से समझाओ। आप हज करने जा रहे हैं, क्या नजर पड़ी, क्या देखा? एक औरत घर से बाहर निकली, हराम चीज पड़ी, मुर्दार, मुर्दार पड़ा, परिंदा पड़ा हुआ था, उस मुर्दार को लेके घर में चली गई। मोमिन थे, तड़प गए। आज एहसास है हमारे यहाँ, हाँ? आप अगर मुर्ग मुसल्लम खा रहे हो तो समझते हो कि पूरी दुनिया खा रही है। हाल पड़ोस का ये है कि गरीब मुसलमान के बच्चे तड़प रहे हैं, उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं, 25 साल की बेटी हो गई, हाथ पीली करने के लिए पैसे नहीं है, रात भर मेहनत करते हो बेलसाड़ और सूरज जा जा के, नतीजा क्या निकलता है? वाह रे अब्दुल्ला इब्न मुबारक, देखा औरत घर से बाहर आई, मुर्दा परिंदा ली घर में चली गई, आप तड़प गए, आप दरवाजे पे दस्तक दिए, कहा कौन? कहा बहन दरवाजा तो खोलो। बहन ने जान लिया कि हजरत आ रहे हैं, कहा दरवाजा नहीं खुलेगा ना, कहा नहीं बहन दरवाजा खोलो। अल्लाह की कसम दरवाजा खुला, अंदर गए, अंदर का माहौल देखा, तड़प गए। क्या देखा कि वही औरत मुर्दा परिंदे की बोटी बोटी करके देशकी में पका रही, चूल्हे पे रखकर पका रही है। चीख उठे, कहा बहन ये तो हराम है, ये बहन हराम खाती हो खिलाती हो। वो औरत तड़प जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक का पाँव पकड़ लिया, कहा अब्दुल्ला हराम और हलाल की तफरीक उस वक्त इंसान करता है जब उसका पेट भरा होता है, हराम और हलाल की का इम्तियाज उस वक्त इंसान करता है जब वो शिकम शेर रहता है। ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुमने पूछा नहीं, हालात ने मजबूर कर दिया। मेरा शौहर इंतकाल कर गया, जीते जी बेवा हो गई, 4 बच्चे हैं। जहां जाती हूँ मेरी आबरू का सौदा होता है, जहां जाती हो इंसान शहवत भरी निगाह से मेरी आबरू नोचने की कोशिश करता है। अपने बच्चों की इज्जत, अपनी आबरू, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इस हराम चीज को अपने ऊपर हमने हलाल कर लिया। तड़प गए, आंखों में आंसू आ गए। आज जाकर देखो कितनी बहनें बेटियां बियर बार की जीनत बनी। वाह वाह करते हो, आह आह कब करोगे? जरा देखोगे, आज जरा देखो, नाम लेना जुर्म है, ये दस्तूरे जुबा बनती है कैसे तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। जाकर देखो आपके पड़ोस गजा का हाल क्या है, 10 साल के बच्चे भीख मांग रहे हैं। बात तुमने अल्फिया का इंटरव्यू नहीं सुना? अल्फिया ने चीख कर यही कहा था, अल जजीरा सहाफी से मैं मौत चाहती हूँ, मौत मौत। कहा क्यों मरना चाहती हो? कहा ये फलस्तीन है, यहाँ आग के सिवा कुछ नहीं है, आग ही आग, आसमान से आग, धरती से आग, पानी नहीं है, खून है। मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर कहूंगी माबूद ये सलातीन आलम है जो पैसों पर ऐश कर रहे थे, तेरे रसूल की गरीब बच्चियां मर रही थी हॉस्पिटल में दवा के लिए, पैसे नहीं थे, पीने के लिए पानी नहीं थे। ए पाक परवरदिगार दे मुझे मौत। एक मजलूम की आह थी, वहीं से सटा हुआ मक्का है, वहीं सटा हुआ मदीना है। क्या आहे वहां के बादशाह नहीं सुन रहे हैं? क्या ये आहे वहां के सलातीन आलम नहीं सुन रहे हैं? आप जाते हो, हज किए पलट आए, मैं भी 15 रोज वहां रुका रहा, आहें भरता रहा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। क्या हाल है, क्या हाल है हमारे मजलूम। यही सोच तुम्हारी रहेगी तब कामयाबी मिलेगी। यही पंखे का थोड़ा रुख बदल दो, पंखे का रुख थोड़ा बदल दो, है ना। ये हजरात क्या तुम्हारी सोच है? कब ये अगर तुम्हारे हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते तो तुम्हारे हाथ पड़ोसी तक तो जरूर पहुंच रहे हैं। तुम्हारे हाथ अगर यहां से 4000 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो तुम्हारे हाथ अपनी गरीब बहन तक तो पहुंच रहे हैं। कमेटी क्यों नहीं बनाते हो कि खबरदार खबरदार, अब जहेज नासूर है, नासूर कैंसर है। अगर जो जहेज का मुतालबा किया
नہ अपनी बेटी देंगे न उसकी बेटी लाएंगे, शरीयत के मुताबिक शादी होगी। खुदा की कसम आज भी हो जो इब्राहिम सईबा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। उठो, आज भी इनकलाब तुम्हारी जात से पैदा हो सकता है। बाहर अब्दुल्ला इब्न मुबारक, सारा पैसा दे दिया आपने, सारा पैसा दे दिया, सारा पैसा दे दिया, हज करने जा रहे थे। आज क्या हाल है? एक हज कर लिए ना, ये उम्रा, एक उम्रा, 10 उम्रा, 50 उम्रा, किसको दिखा रहे हो? गरीब बाप की बेटी तड़प रही है, गरीब नौजवान के बच्चे जो उम्रा में खर्चा करोगे, एक फर्ज अदा कर लिया ना तुमने, जो उम्रा में पैसा खर्चा करोगे, देखो अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो तो वही पैसा उसकी तालीम पर खर्च कर दो, वही पैसा तिजारत पे खर्च कर दो। ये तसन्नुबाजी कब तक? अब्दुल्ला इब्न मुबारक रोने लगे, बाहर आए, आने के बाद आपने कहा साथियों सारा पैसा लाओ, सब पैसा लेते हैं। लेने के बाद कहा बहन ये पैसा ले ले, ये मेरी बहन ये पैसा मैं हज करने जा रहा था, अब हज करने नहीं जाऊंगा। पैसा देने के बाद बाहर आए बरसती हुई आंखों से। साथियों ने पूछा, रुफ़क़ा ने पूछा अब्दुल्ला इब्न मुबारक सफर हज नहीं करोगे? कहा ए लोगों नहीं नहीं आओ, आने यहाँ आओ, सब के सब इकट्ठा हो गए। कहा लोगों आओ, इसी औरत की झोपड़ी का तवाफ कर लो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, यही पढ़ते हुए इसी औरत की झोपड़ी का तवाफ कर लो, यही खाने काबा है, अब यहाँ से चले चलो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे, करो पया। सारा हज का पैसा दे दिया और उसी औरत की झोपड़ी का तवाफ किया। कब ये करोगे? कब ये करोगे आप? कब पढ़ोगे लिखोगे? अच्छा देखे चले गए, रात भर रोए, चैन नहीं आया, तो आखिर इसका सिला क्या मिला? आंखें लगी क्या देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कौन कहता है आका रहते हैं फ़कत मदीने में? अरे गलत है, वो रहते हैं आशिकों के सीने में। रसूलुल्लाह की उम्मत को तुम अब सवार लो, रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए तुम सहारा बन जाओ, रसूल खुश हो जाएंगे। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, जैसे पैगंबर तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कदमों में गिर पड़े। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई आका, मैं आ रहा था, आपकी उम्मत की एक औरत हराम खा रही थी, पैसे नहीं थे, सारा पैसा मैंने उसको दे दिया, हराम खाने से उसको बचाया, मुर्दार खाने से बचाया। या रसूल अल्लाह आ ना सका, जैसे कहा आ ना सका। अल्लाह के रसूल तड़प कर कहते हैं ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अल्लाह ने तुम्हारे अमल को कबूल कर लिया है। ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अरे तुमने अपने हज को उस औरत के लिए कुर्बान कर दिया है, अल्लाह ने 70 हज का सवाब तुम्हारे नामाए अमाल में दे दिया है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे, करो बया। इसी तरीके से उठो, जहेज को खत्म करो, पर्दे का लिहाज करो। आज क्या हाल है? ये मौलाना नजरुल हसन साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके वाली साहब जबरदस्त आलिम दीन, जबरदस्त आलिम दीन, ये जो बैठे हैं जबरदस्त इनके आलिम, इनके वालिद आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती नूरुल हसन साहब क़िबला दामत बरकातहुम आलिया, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। ताजदारे बिलग्राम हुजूर सरकार मखदूम मिल्लत सैयद उवैस मुस्तफ़ा दामत बरकातहुम आलिया, जिनके दरवाजे के हम भिखारी हैं, गदागर हैं, उनकी बारगाह करम में 12 साल तक थे, काफ़ी फैज़ हासिल किया, उन्हीं के साहबजादे हैं। आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, अल्लामा देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। असरात मौलाना इकरार साहब, सुभान अल्लाह, आप देख रहे हो काफ़ी ज़ी इल्म है, ज़ी फ़हम है, अल्हम्दुलिल्लाह। 11वीं शरीफ का महीना आया, उस दिन मैंने जिक्र किया आपका, ज़रूर सिलौधी जाना पड़ेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हुज़ूर गौसे आज़म का करम और फैज़ान इनके ऊपर है। ये हज़रात, इनकी सोच, इनकी फ़िक्र देख कर तबीयत बाग बाग हो गई है, इसलिए तबीयत बाग बाग हो गई है। इसी सोच की आज ज़रूरत है, इसी इनक़लाब की आज ज़रूरत है, इसी फ़िक्र की आप ज़रूरत है। और रहा नमाज रोजा, तो आज हाल ये है, नमाज का हाल ये है। अभी मैं इशा की नमाज पढ़ा, ये हाल है आपका,
हाँ, मस्जिद भरी जानी चाहिए ना। क्या हाल है? आए है, नमाज का हाल क्या जानते हो? प्रोफेसर मसूद अहमद फरमाते हैं कि यहूदी था जर्मन यूनिवर्सिटी में, आए हैं इंकलाब बर्पा। देखो जर्मन यूनिवर्सिटी है, बच्चे हॉस्टल में उठते हैं और उठने के बाद बर्फ की सिल को, ठंडी का महीना है, निकाल के पानी निकालते हैं उस बर्फ को पिघला के। प्रोफेसर ने पूछा, बच्चों क्यों पानी निकाल रहे हो? ये बर्फ है, ठंडी लग जाएगी, कड़कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। बच्चों ने जवाब दिया, सर तुम्हें नहीं मालूम है नमाज तहज्जुद का वक्त हो चुका है। आए है, तहज्जुद का वक्त हो चुका है। इस्लाम कहता है अगर जिस्म प्यासा हो तो पानी पिया जाए, रूह प्यासी हो तो नमाज पढ़ी जाए। हम इसी पानी से वजू बना के अल्लाह की बारगाह में सजदा करना चाहते हैं। उस यहूदी ने चीख मार कर कहा था, ये शेरो, ये वफादारो, जब तक तुम्हारा ताल्लुक नमाज से ऐसे ही रहा तो ये कौम न डूबी है न डूब सकती है। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। इशा की नमाज का हाल क्या है? एक सफ, ये कहां चले जाते हैं? ये सब जुमा में पूरी मस्जिद भर जाती है और जुमा के बाद ये मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह कहां गायब हो जाते हैं। ये हाल है तुम्हारा। जो कौम ठंडी में नमाज न पढ़ सके, वक्त ना दे सके, चले हैं जिहाद करने के लिए। ये जिहाद करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे, नमाज ना छोड़ो। सुना है ना आपने? वाह रे, हजरत अब्दुल्ला अमीन रहमतुल्लाह अलैह प्रोफेसर हैं अमीन। आप अपनी किताब गुनाहे बेगुनाही में लिखते हैं। बहुत बड़े ताजिर थे, सफर कर रहे थे, बहुत बड़े ताजिर थे, सफर कर रहे थे। रास्ते में डाकू मिल गया। कहाँ जा रहे हो? ताजिर साहब, जा रहा हूँ कूफा, मुझे भी लेके चलो। कहा चलो? कहा चलो। कुछ दूर गए थे तो घोड़े से जमीन पर आ गया, खंजर लिया, कहा नीचे उतरो। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हें ज़बाह करूंगा। आखिरी ख्वाहिश बताओ। ताजिर ने कहा आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे 2 मिनट का टाइम दे दे। कहा क्या करोगे? वसीयत बच्चों की। कहा नहीं, वजू बनाकर रब की बारगाह में सजदा करूंगा। आए है, जैसे कहा सजदा करूंगा, कहा दिया मैंने। जब वो ताजिर सजदे में गया, तड़प कर कहा, ये जमीन हो आसमान के मालिक, पाक परवरदिगार, मैंने सुना है जहां कोई किसी की मदद नहीं करता वहां तू मदद करता है। मेरे माबूद, जालिम से बचा। अरे दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। कुदसिउल अस्ल है, रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे नजर रखती है। तड़प कर रोया है। हम तो रोना जानते ही नहीं, सिर्फ हंसना जानते हैं। रोड पे देखो तो हंसना, मस्जिद में देखो तो हंसना, बाजार में देखो तो हंसना। कैसे बला टलेगी? ये बला जो आई हुई है, ये तूफान जो आया हुआ है, मस्जिद, मदरसा, खानकाह, आपका घर, आपकी तहजीब, आपका कुछ नहीं बच रहा है। ये तूफान तलवार से नहीं, सजदों से ये तूफान रुकेगा, तलावत से रुकेगा। मोहम्मद अमीन तड़प फरमाते हैं कि जिस वक्त ताजिर ने तड़प कर रोया है, पीछे पलट कर क्या देखा कि एक नकाबपोश अपना खंजर उस जालिम के सीने में पेवस्त कर दिया है। वो जालिम नाक रगड़ रगड़ के मर रहा है, मर गया। जब वो जाने लगे नकाबपोश, ताजिर आके बढ़ के दामन पकड़ लिया। कौन हो? कहाँ जा रहे हो? चेहरा तो दिखा दो। कहा देखना चाहते हो? हाँ, तुम कौन हो? इस सहरा में आए हो हमारी मदद करने के लिए, इस सहरा में आए हो मेरी इमदाद करने के लिए। कहा ताजिर सुनो, गौर से देख लो, मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारी नमाज हूं जो तुमने पढ़ा था, मैं तुम्हारा सजदा हूं जो तुमने किया था, मैं तुम्हारी तिलावत हूं जो तुमने किया था। ए ताजिर, आज अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। उठो शेरो, हाथ उठाओ इस मजमे में, अगर गैरत जिंदा है उठाओ हाथ। क्या अहद करते हैं आज इस जलसे में, इंशाअल्लाह नमाज छोड़ेंगे नहीं, अपने रब को सजदों से
سے منائیں گے, تڑپ کے منائیں گے اپنے رب کو. اگر رب مان لیا تو ساری کائنات تمہارے زیر اثر. تو کب ہاتھ اٹھاؤ گے؟ چلا جاؤں گا تب. اچھا جو بیچارے نماز نہیں پڑھنا چاہتے, نہیں آئیں گے, وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. اس کا مطلب سب حاضر رہیں گے فجر میں انشاءاللہ نا؟ حاضر رہو گے نا؟ آئے ہے بس آخری بات یہی سجدہ ہے, پکڑ لو. باہر نماز کیا حال ہے ذرا دیکھو, نماز, میرے نماز کا حال ذرا دیکھو. عبادت کرو, نماز پڑھو. صلاح الدین ایوبی کون نہیں جانتا؟ یہ صرف نعرے بازی سے کچھ ہونے ہوانے والا نہیں ہے. افسوس یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, حالات تمہارے کچھ. کتنے بچے جیل کی سلاخوں میں تڑپ رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے کیا؟ کیونکہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو. اصل رونے کی جگہ مسجد ہے نا, اصل رونے کی جگہ سجدہ ہے نا. اچھا مسجد میں جاتے بھی ہو تو حال تمہارا یہ رہتا ہے, یا اللہ ادھر امام صاحب سلام پھیرے, جیسے معلوم پڑتا ہے تہاڑ جیل میں سب بند ہے. امام سلام پھیرے کے بیچارے کود کے سب بھاگ لیے, 5 منٹ نہیں لگتا سب مسجد سے باہر. یہ تمہارے عمل کا حال ہے. اتنی بے چینی مسجد میں, اتنا اضطراب. یہی بندہ روڈ پہ کھڑا رہے گا 10 گھنٹہ تک, کوئی پریشانی نہیں, اور مسجد میں 5 منٹ کا حال یہ ہے کہ جلدی ختم ہو, بھاگے جلدی سے. آج 90% لوگ کٹی پیٹی نماز پڑھ رہے ہیں, شارٹ کٹ نماز. کوئی 14 رکعت پڑھ رہا ہے, امام صاحب سلام پھیرے کہ سب کے سب غائب ہو گئے. کیسے بلا ٹلے گی؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ 1.5 لاکھ فوج سمندر کے راستے سے آ رہی ہے, سجدے میں چلے گئے. کتنی فوج؟ 1.5 لاکھ. آپ کے پاس فوج کتنا؟ 10,000. تڑپ گئے, سجدے میں چلے گئے. عشاء کے ٹائم گئے ہیں صلاح الدین ایوبی بیت المقدس, آج اس کے لیے لڑائی ہو رہی. سجدے میں چلے گئے, فجر کی اذان ہوئی تب سجدے سے سر اٹھایا. یا اللہ 8 گھنٹے سجدے میں رہے. 8 منٹ تم نہیں رہو گے. بچے موبائل کی سکرین پر برہنہ تصویر دیکھ کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں, نگاہ برباد ہو گئی, خیال برباد ہو گئے, تو کبھی دعائیں قبول نہیں ہوگی. واہ صلاح الدین ایوبی 8 گھنٹے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا, مؤذن نے کہا ایوبی کامیاب ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا جو لشکر آ رہا تھا سمندر کے راستے سے, 20 سمندر میں ڈوب گیا, سب مر گئے. ایوبی کامیاب ہو گیا. صلاح الدین ایوبی رو کر کہتے ہوا کیسے؟ جو اذان دیتے تھے بابا, تڑپ کر کہا ایوبی تمہیں نہیں معلوم وہ لشکر سمندر میں نہیں ڈوبا ہے, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے, تیری آہوں میں ڈوب گیا ہے. رات بھر روتا رہا, رات بھر تڑپتا رہا. معبود اگر آج بیت المقدس کو نہ میں نے آزاد کیا تو قیامت تک کوئی آزاد نہیں کر پائے گا. اللہ نے نصرت عطا فرمائی, غیبی مدد عطا فرمائی ہے. یہ نماز کا صدقہ, یہ نماز کی دین, یہ نماز کی کرامت, یہ نماز کی عطا, یہ نماز کا صدقہ, یہ نماز کی طہارت, یہ نماز کی والدگی, یہ نماز کی پاکیزگی, یہ نماز کی بلندی ہے. یہی وجہ ہے اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. پڑھو نماز انشاءاللہ العزیز, ایک رہو, اور سب سے پہلے جہیز کو ختم کرو, اپنے بچوں کو تعلیم دو, سودی نظام ختم کرو, اور یہ علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دو, ان سے کچھ مسئلے مسائل حاصل کرو, دین کی باتیں حاصل کرو. یہ علماء ہیں, یہی قائد ہیں. آج عالم کا حال کیا ہے؟ یا اللہ اگر امام صاحب مار دیے تو ان کی خیریت نہیں ہے. کوئی خیریت؟ کوئی خیریت نہیں. علم ایسے ملتا ہے؟ نہیں, علم ایسے نہیں ملتا ہے میرے بیٹ, میرے دوست. علم بڑی محنت سے ملتا ہے, علم بڑی مشقت سے ملتا ہے. یہ نظر الحسن صاحب, یہ ہمارے علامہ اقرار صاحب, یہ ہمارے ہاشم صاحب, یہ ہمارے حضرت جتنے بھی علماء اکرام ہیں اسرار صاحب, یہی ہیں جو قیامت تک دین کو چلائیں گے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ نے نبوت
वो तो रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। और दिगर कौम का हाल देखिए, उनके रहनुमा जब आते हैं तो कदमों में गिर पड़ते हैं, और हमारा हाल देखिए, हमारे रहनुमा अगर आए तो सलाम करने के लिए कोई तैयार नहीं, उठने के लिए कोई तैयार नहीं है, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर दिन के लिए खर्च करने की बारी आ जाए तो आप जानते हो क़यामत सुगरा एहसास होता है, दिल पर कायम हो गई है। फजूल खर्ची के लिए हम बादशाह बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, उलमा की ज़िंदगी में आप जब अपने अमल को दाखिल करोगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा होगा, क्रांति आएगी। जलसा सुनो, क्योंकि मैंने वक्त अल्लामा इकरार साहब को कह के इसलिए ले लिया कि वक्त बड़ा पुराशोभ है, देख ही रहे हो, और हालत अपनी देख ही रहे हो। मौलाना नजरुल हसन साहब अल्लाह इनको कायम दायम रखे, आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं, बासलाहियत ज़ी इल्म है, इनका हुक्म है मैं चला आया। बहरहाल जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज कहे मौला, अगर कोई गलती हुई हो तो मेरी तरफ से है, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी खताओं को माफ़ फरमाए, और इस जुबान से जो हक बात निकली है वो मेरी तरफ से नहीं मौला, सब तेरे तेरे करम की बात है, तेरे फजल की बात है, तेरे दया की बात है। तू जो चाहे तो कतरा दरिया हो जाए, तू चाहे तो खार फूल हो जाए, तू चाहे तो जर्रा आफताब बन जाए। मौला तू हम सब पर करम अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जलसा चलेगा, आप जलसे में बैठें, समाअत करें, कुछ बातें अपने दिल में नोट करो, और फिर इस पर अमल करोगे तो आपके पीछे इस गुनहगार की भी बख्शिश हो जाएगी। अस्सलातु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।